Hi everyone, this is Yuti Belwal. This video is about three girls who are studying in Davao Medical School Foundation of Philippines, and in this video they tell you about their experience of studying in this university. In this video they are telling how did they decide to study abroad, why did they choose to study in Philippines, what is the MCI passing ratio of this university, information about NMAT examination which they have given and cleared, inhibitions of girls to study abroad, food habits of Philippines and how a vegetarian can adjust there. Their views about next examination, schedule to study in Philippines, transport facilities for daily commute, how easy it is to communicate with the teachers. So watch this video to get encouraged to study MBBS abroad and study MBBS in Philippines. In case you feel like having any questions or queries, please contact me so that I can resolve them. Thank you so much and enjoy the video. Hi everyone, this is Yukti Belwal and right now we are at Davao Medical School and this is the hostel का security room है. यहाँ पे आप देख सकते हैं cameras वगैरह काफ़ी का display आ रहा है security reason से. So we just happened to meet three girls who are studying here and in the first year of their study of MBBS. So let's ask them कि अभी जितना journey आप लोग का हुआ है वो कैसा रहा है. First of all, can you please introduce yourself? I'm Diksha Khandelwal and I'm from Kolkata, India. Shreya Sinha from Calcutta. I'm Anishri Bansal from Chandigarh. Okay. So these all three girls are studying. So guys, first of all, MBBS इंडिया में ट्राई करा होगा आप लोगों ने, कोशिश करी होगी. कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? NEET. Yeah, we qualified for NEET, but then उसके बाद we went through counseling and stuff. So it was according to our rank we got results in third counseling. So basically the fees India में is not feasible, and then there is stuff like rural posting. So we found this is a better option. That's why we are. सब रूरल पोस्टिंग का हो गया है ना इंडिया का? कुछ ऐसा है रूरल पोस्टिंग होगा? नहीं, कंपलसरी हो रहा है. कोर्ट में बात चल रही थी कि शायद हटा दें, बट अब कंपलसरी हो गया है कि हर डॉक्टर को रूरल पोस्टिंग करनी पड़ेगी यूजी के बाद. इट इज इम्पोर्टेंट 2 से 3 साल, एंड दे मेक यू साइन अ बॉन्ड आल्सो फॉर 30 lakhs. Yes. So that's a huge amount, and they don't release you before that. So it's compulsory. Okay. So you decided why not abroad? Yeah. So how come you decided about Philippines? Like there are so many other countries as well. So कैसे आपने डिसाइड किया? फिलीपींस का मेरे अंकल प्रिंसिपल हैं एक स्कूल के, और वहाँ पे काउंसलिंग के लिए लोग आते थे, तो जो इंडोर्स करते हैं सब चीज़ों के बारे में, तो मैंने उनसे बात करी. उन्होंने बताया फिलीपींस के बारे में, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर फीजिबल है, और बेसिकली हमने देखा कि MCI क्वालिफिकेशन जो रेट है यहाँ का इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. जैसे रशिया चाइना में लैंग्वेज बैरियर भी है, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है. प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे मोस्टली एवरीवन इज दे स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो वो लैंग्वेज की इशू नहीं है. और कोई भी प्री मेड कोर्स इतना लंबा नहीं है, 5-6 महीने का. सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल. क्या आपको स्टडी करना पड़ता है प्री मेड में? BS में इट डिपेंड्स. जैसे आपको बायोलॉजी होगा, BS बायोलॉजी है, BS साइकोलॉजी है, सो यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली. वैसे ही आप फिर उसके बाद बायोलॉजी में आपको बेसिक बायो पढ़ाते हैं, और साइकोलॉजी में आपको डिग्री मिलती है, साइकोलॉजी के बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, नॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी. सो कितना लंबा ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का आपका जो BS होता है? ये वेरिएबल है. अभी बात चल रही है, शायद इस साल से एक्सटेंड कर दिया गया है 2 years का, बट हमने अराउंड 8 months का करा था पूरा. हाफ पार्ट इन इंडिया एंड आधा यहाँ पे. एंड व्हाट अबाउट लाइक इनहिबिशंस ऑफ गर्ल्स? आप बताइए, बाहर स्पेशली नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं लोग इसे बाहर भेजना, कैसे आपके मॉम डैड ने डिसाइड किया? Actually, ma'am, मेरे साथ it was like कि I got a seat but I lost it due to system errors. So my score was good, everything was good, but we did not know about this place. But we did some research online only. No one knew this place existed. So talked in the embassy and everything, and we discovered when same MCI rate clearance was high, and I explored for other countries as well. Explored for Ukraine, but again the climate and the language barrier. Harsh climate and all. Yeah, so it was not perfect. And plus the plus point was that we could acclimatize ourselves in India itself, because all of us, we were together in India only and we came here together. You guys? Yeah. So it was like that. Like अच्छा, आपको सेम लगा कि चलो वो फ्रेंड्स वहाँ पे भी? Yeah, it was easy to adjust because we knew people we were going with, so it was good because एक comfortable environment. और यहाँ पे आने के बाद कितने comfortable लगा आपको यहाँ पे join करने के बाद?
हम लोग we came here like Feb 2019. Okay. So initial week it was a little. It was not a trouble because one of her friend she got fallen. तो आपको गाइड कर दिया उन्होंने. Yeah, no, she fell sick. She fell sick. Yeah, तो basically we spent अपना 3-4 दिन initially दवा hospital में. So it was start to medical journey. And then उसके बाद March it was a holiday for us, so we explored the place and stuff. And April से we started the BS course, which is just going to college and coming back. It was fun. It was nice. Yeah. And why not Manila? Just because of this college school is good. That's why you are here. हाँ, इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा सुना भी था और हमें सारा फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग सब कुछ काफ़ी फीजिबल और प्रैक्टिकल लगा. और बाकी MCI के उस पे लिस्ट वगैरह पे देखा, बातें सुनी तो. अच्छा. How is the city? दबाव. Very friendly, very काफ़ी docile से अच्छे से लगता है. safe, yeah. And I was just asking this, being a girl, like how easy was it to convince your parents, or they were only convinced? हमारे तो सारे पेरेंट्स और ज़्यादा ही थे, हम लोग को नहीं जाना था. They were like you should go, and they were very. That's so nice. Yeah. That's so nice. अच्छा. And what else you feel like because this video will inspire others also to decide, because so many inhibitions are there in the mind of people. I'm sure you must be having some of them. So ऐसा क्या आप बताना चाहते हैं कि बच्चे को लगे कि हाँ मैं आ सकता हूँ यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से. There's one thing जो सबको ही बोलते हैं कि because it's a the people who are vegetarian उनको शायद रहने खाने में दिक्कत हो, but I'm a vegetarian. ऐसे मुझे कुछ दिक्कत हुआ नहीं because the dorm food it's like sufficient. लोग दाल चावल रोटी सब्जी प्योर इंडियन खाना रहता है, so it's very ये चीज़ अच्छी. In fact हम लोग के कॉलेज के जो लेन में वहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स, Singh's King, this इंडियन स्पाइस वगैरह, तो फूड का there is no trouble. प्लस नॉन वेजिटेरियंस के नॉन-वेजिटेरियंस के लिए ठीक है, एकदम ठीक है. आपको अगर एक्सप्लोर करना है अपने टेस्ट बड्स और बढ़ाने हैं तो बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे. रोआज नाइट मार्केट वहाँ पे तो आप हर तरह के जानवर खाएंगे. हाँ, I saw they cook a lot of things. एक इनहिबिशन ये होता है बाहर पढ़ने का कि बाद में वापस आके आपको एग्जाम देना पड़ता है, ये चीज़ है. तो वो अब ऐसा हो गया है, जो बात चली है कि अब MCI काउंसिल डिसॉल्व हो गया और नेक्स्ट इस्टेब्लिश हुआ है. यहाँ पे अब एक सिंगल एग्जाम होगा जो इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना है और फॉरेन स्टूडेंट्स को भी देना है. सो अब ऐसी बात नहीं है कि आपको अलग से ज़्यादा कुछ करना पड़े. एवरीबडी इज ऑन द सेम बोर्ड. अब आपको एक ही साथ एग्जाम देना है. इट्स नॉट लाइक किसी को बूस्टर मिल रहा है बिकॉज दे डिड इट फ्रॉम इंडिया. सबको एक ही स्केल से मेजर किया जा रहा है. So I think this is a very good thing the government has done. और PG के साथ भी अब आपको you can get PG के seats also through that, so it's good. अब ये तो लागू हो गया है. अब आगे जाके that is nice. Also your parents can easily visit here if they want because the visa process is so easy. हाँ, I think आपके parents आ चुके हैं, किसी के आए? मेरे पापा आए थे April last year 2019 में. तो he travels China तो from China only he came here. तो उन्हें काफी अच्छा लगा देख के. Also the campus is so nice. Area बहुत safe है, अंदर कोई ऐसे आ नहीं सकता है. Because I myself have gone many hostels and all, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जो है आपकी सेफ्टी वगैरह. And the last thing is like ऐसा तो नहीं लगता आप लोगों को यहाँ पे जैसे कम्युनिटी है, नॉर्थ की भी है, साउथ की भी है, कुछ इश्यूज आते हो? नहीं, कोई इशू नहीं. यहाँ पे तो हम सब अलग ही जगह पे हैं. हाँ, नॉर्थ इंडियंस हैं काफ़ी सारे. गुजराती हैं, महाराष्ट्र हैं, हम लोग कैलकाटा से आए हैं, तो इस तरह का मिक्स है. साउथ इंडियंस हैं ज़्यादा, बट हम तो सब इंडियंस ही हैं यहाँ पे. हम लोग अलग जगह आए हुए हैं. That's a good thing. Yeah, I want to know this only. तो कुछ डिफरेंस की बात नहीं है, सब एक ही साथ है. तो शुरू कब होती है? मॉर्निंग में आप कितने बजे जाते हो? ये बहुत वेरिएबल है मैम. मतलब हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर के हैं ना, तो पर वीकली जैसे स्केड्यूल आता है. अच्छा, वीकली शेड्यूल आता है. हाँ. मतलब एक मैट्रिक्स है. सेम के स्टार्ट होने पर उन्होंने मैट्रिक्स दे दी थी हमारे 5 महीने का जो भी रहेगा. बट देन वो अपडेट होता है एक दिन पहले. इट्स लाइक एक दिन पहले ग्रुप्स है हमारे क्लासेस के, तो हमें मैसेज आता है कि इतने से इतने बजे तक क्लास है. तो जो स्केड्यूल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है. बट इट वैरीज. कभी 7:30 बजे क्लास है, कभी 3 बजे क्लास है, कभी 7:30 से 9 क्लास होगी. क्लास मोस्टली मैक्सिमम 2 घंटे की. हाँ, एक क्लास 2 घंटे की. उसके बाद एक दिन में 3 क्लास 4 क्लास वैरी करते हैं. समटाइम्स वी हैव क्लास टिल 8:30 रात तक. और कभी कभार बस आपके इवनिंग में ही रहेगा, मॉर्निंग में रहेगा नहीं. सो इट इज वेरिएबल ऑल इयर्स. इट्स वेरिएबल. तो आपकी 2-2 घंटे क्लास 3 से 4 क्लासेस हो सकती हैं एक दिन में? हाँ. 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एक भी हो सकती है. अच्छा. वैसे हैं. तो मंडे टू सैटरडे.
ओके ओके एंड सैटरडे तक होता है यहाँ पे, सैटरडे ऑफ नहीं है? नहीं सैटरडे सैटरडे को एक ही क्लास लगती है, एक ही class सैटरडे को हाफ डे होता है। हाँ कम्यूट करना इजी है यहाँ से? जीपनी चलती है यहाँ, हाँ, इट्स हाँ। वेरी इजी टू ट्रैवल अच्छा। इट्स वेरी चीप एंड इट्स वेरी इजी, आप पूरे सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स लाइक और आपको सिटीज चीप लगा, मतलब ओ या सिटी इज प्रीटी फाइन, ऐसा कुछ ऐसा महंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं। और प्लस इंडिया से यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, हम्म, इंडियन रुपीज टू पेसोस, बिल्कुल, वेरी वेरी लेस। सो देयर इज, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्वर्जन में आयुषु में। that's very nice. हाँ, टीचर्स आर यू एबल टू कम्युनिकेट विद देम इजीली? Oh यहाँ पे जितने भी सब फिलीपींस टीचर है, कोई इंडियन टीचर नहीं है, बट जैसे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में काफ़ी क्लियर और काफ़ी प्रॉपर है, एंड इन केस कुछ डाउट हो तो हम लोग जाके बात कर सकते हमारी हैं उनसे। एक इंडियन टीचर है जो डीएमएसएफ की ही ग्रेजुएट हैं, उनकी फर्स्ट बैच से निकली हुई हैं, तो शी इज़ देयर, वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाती है। सारे टीचर्स इफ़ यू आर फ्लुएंट, अगर आप बात कर सकते हो उनसे इंग्लिश में वगैरह, एंड दे इवन इफ़ यू स्ट्रगल विद द लैंग्वेज दे इवन ब्रेक इट डाउन फॉर यू टू मेक इट सिंप्लीफाइड, कि आपको समझ में आ जाए। एंड एकदम भी ऐसी कोई बात नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करते, दे वेरी found वेरी them वेलकमिंग, very दे वेरी वार्म। They are very welcoming. their attitude towards Indian is good. हाँ, एंड दे वेरी क्यूरियस ऑल्सो, सब कुछ जानना है कि इंडियन कल्चर कैसा है, क्या है, कौन सी लैंग्वेज है वो, Some तो वेरी teachers even love trying Indian food. Students bring in Indian food. उन्हें खिलाते हैं। because बगल लाइन में 7-8 रेस्टोरेंट है, so we've seen teachers also, and since most of our professors are doctors themselves, हाँ। so they have like really busy schedules, Practicing doctors। all of them, All of them all are of them। practicing, yeah. तो all of आपको them वो are भी practicing। कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले? Even if we miss a class, they reschedule it. Maybe the other next week or the next day. They हाँ, अगर आप जैसे they मान do लो not मिस कर cancel दिया, the class. आप एब्सेंट हो तो क्या होता है? Oh no. नहीं, if you are absent because it's a med school ना, तो आप absent है तो you have to cope yourself, Cope yourself. but ये कह रही कि if there is a class cancellation because cancellation. they are a practicing doctor, उनके emergency हो सकता है, उनका कोई issue हो Or सकता they, है, if they तो come, करेंगे वो? हाँ, yeah, वो लोग so करेंगे, they they don't- reschedule the class. एंड अगर आप एब्सेंट होते हो तो क्या होता है? आपको खुद पढ़ना पड़ता है या कुछ Yeah. फाइन देना पड़ता है? no fine, we fine just नहीं। have to, जो भी miss हुआ है क्लास का, जैसे normal school में होता है ना, if you've missed something then you study आपने yourself। जो क्लासमेट्स हैं उससे पूछ लिया? हाँ, that's अच्छा, ऐसा होता है यहाँ पे। एग्जाम सिस्टम्स है नाइस, जैसे हम लोग की जितनी भी पढ़ाई होती है पर वीक कुछ, तो इवैल्यूएशन एग्जाम्स चलते रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा। वो ऑन अ रेगुलर बेसिस है, हाँ। तो आप जितना पढ़ते हो उतना पढ़ के एग्जाम देते थे, एंड देन पूरे मंथ का सिलेबस Understood। एक बार मेजर एग्जाम। तो आपका एक बार में बर्डन नहीं रहता है, जो हमारे बाकी कॉलेजेस में रहते हैं ना कि अच्छा कल पढ़ेंगे, अब 2 दिन बाद एग्जाम 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। 6 महीने के बाद जो हाँ। सेमेस्टर एग्जाम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एवरी वीक वी हैव अराउंड 2 to 3 एग्जाम्स, सो व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग, जैसे आज जो चैप्टर पढ़ा परसों उसी का एग्जाम देना है, सो यू हैव टू स्टडी। और वो आपके मार्क्स पे जॉइन होते हैं? all of it all of it. counts। आप किसी में भी you can't be like I can fail, you can't afford that, it's everything counts। पढ़ाई का अच्छा लेवल है, क्वालिटी Very अच्छी nice, है। yes, nice। अच्छा अच्छा। आई सॉ द लाइक सिमुलेशन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, सिमुलेशन सेंटर भी है, एंड आपकी बहुत सारी चीज़ें जो अब्रॉड में भी यूज होती हैं अच्छी जगह में, वो भी यहाँ पे अवेलेबल। सो वन मोर क्वेश्चन, लाइक एनमैट एग्जाम इज समथिंग यू नो यू हैव टू गिव आफ्टर डूइंग योर BS, सो कैसा एग्जाम है और क्या आपने किया, क्या प्रिपेयर किया आपने, कैसे दिया आपने? हमने BS के पहले दिया था एक्चुअली, यहाँ पे आने के बाद ओके। हमने पुणे में अपना आधा BS किया था, Oh, और okay. यहाँ पे भी डिड द रिमेनिंग मंथ्स वाला। तो आफ्टर कमिंग हियर वी स्टार्टेड डूइंग आवर क्लासेस, मतलब कॉलेज से इट वाज सब साथ में इन ब्रोकन शहर, एनमैट का प्रिपरेशन क्लासेस, क्रैश कोर्स काइंड ऑफ, एंड उसके बाद 2 weeks की क्लास के बाद वी गेव एनमैट 5th March को अराउंड, अच्छा। या एंड देन उसके बाद वी कुछ परसेंटाइल आता है उसमें कुछ? हाँ, परसेंटाइल Yeah. आता है आपका 40 परसेंटाइल पासिंग होता है, सो विच इज़ वेरी नॉर्मल ही है काफ़ी। आप अगर बेसिक आपका 11th-12th इफ़ यूर अ साइंस स्टूडेंट और आपका 11th-12th बेसिक इंडिया से क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होनी चाहिए एनमैट क्लियर करने में। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं एनमैट के? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल, ये सब आपका Reasoning. लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड Reasoning and all. Reasoning and logic. I saw there are 6 subjects I think, PCB and some Yes, sir, general reasoning. हाँ। ओके, तो इजी रहा? वही तो 2 पार्ट में होता है, तो सुबह इट्स एप्टीट्यूड, देन यू हैव अ ब्रेक ऑफ 1 hour or 2, और फिर सेकंड पार्ट साइंस को होता है, ओके। तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ- अटेन्यू जो यूनिवर्सिटी है हाँ। वो मेजर सेंटर है, तो इट्स लाइक नियर बाय ओनली। अच्छा, तो ऐसा कुछ होता है कि कोई एनमेट पास नहीं कर पाता तो? They can reappear next year. Next It happens 2 times in 1 year. So one in हाँ, 2 बार March होता है। and जैसे one in आपने October. मार्च में नहीं करा तो अक्टूबर में वापस से एग्जाम होता है, तो आप फिर अप्लाई कर लो, आप फिर दे दो। नाउ इट्स लाइक आई हैव सीन दैट नाउ जस्ट अपीयर करना है, अभी तो कर दिया। Okay. हाँ, आप कहते नॉर्थ में इसकी क्या नहीं है, जानकारी नहीं लोगों को। There's not much awareness because
we are just 20 or 30 people in our batch of out of 400-500 who are from over there. So they should Not- know about this college, right? Yeah, because in Manila also I have my seniors studying in Manila. They didn't know about the college over here. So they were like, we have not heard about this, and like we heard good reviews. My dad even talked in the embassy that it's a nice college, and we talked a lot of places to find out if someone we know who studies over here. But we took a chance because the only plus point was we could study in India beforehand, all of us together. The same course we're going to continue here. We could at least get accustomed to that thing. So the only plus point was actually that we could study in India beforehand and then come over here. Okay. Because coming directly over here would have been a very तो आपने थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ा 6 महीने? yeah, we studied for पुणे 6 पढ़ा? months over पुणे भी there. अच्छा कैंपस है? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा very अच्छा है. इट्स वेरी, वहाँ बहुत वार्म है पूरा एनवायरनमेंट पूरा. और MCI कोचिंग भी फिर वहीं पे पुणे में ही होगी आपकी आगे हाँ, जाके? 4th के बाद. ओके, सो आई एम श्योर नॉर्थ में अब हम लोग इस चीज़ को बताएंगे कि यू नो देयर इज अ कॉलेज इन दवाओ इन फिलीपींस विच इज़ मेकिंग वेरी गुड एजुकेशन क्वालिटी. स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है. ठीक है, आई थिंक थैंक यू. यू हैव सॉल्व माई क्वेरीज एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड आई होप कि आपका जर्नी अच्छा रहा. अभी मैं देखा इतना बड़ा कॉन्वोकेशन, सच अ बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हियर. हाँ, तो आई थिंक सून योर डे विल बी कमिंग. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट for your endeavors and thank you for your time.